Jai Hind students, in this video I am going to teach you about the various classes of the fungus. About their general features I have taught you already in the live classes. About their reproduction, how they reproduce, about their body organization, that it consists of hypha which may be septate or aseptate. Hypha may be cynocytic if it consists of several nucleus in a single body, and hypha may be present in a net like structure, it will be called as mycelium. Okay, then about reproduction, they may reproduce by fragmentation, asexual mode, by forming various types of sexual spores like conidia, conidia, sporangiospores, zoospores. These are asexual spores. Or they may reproduce by forming sexual spores like basidiospores, ascospores, oospores. And the steps they follow in sexual reproduction, that is plasmogamy. First plasmogamy, that the different cell will mix up their plasma, two different cell will mix up by their plasma. Then a stage will arise that will consist of a single cell but two nucleus, that will be called as dikaryon cell. Then the two nucleus will fuse and it will become diploid cell, means 2n cell. All the differences I have already taught you in live classes. Now and then meiosis will go on, and then spores will form and new fungus life cycle will start. In this video I am going to teach you the different classes of the fungus, that is based on the characters, morphology of mycelium, mode of spores formation and fruiting bodies. These are the basics on which this fungus has been classified. These four you all are seeing in this video, that phycomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes, ascomycetes are the four different classes of the fungus. One by one we will study these fungus. We will now come to first group of fungus, that is phycomycetes. These are the ancient group of fungus, so they consist of all the ancient characters, less evolved group of fungus. Member of phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites. Obligate means the organism is behaving as parasites, totally as parasites, means their whole life nutrition will depend upon the mode of nutrition in their whole life will be parasitic in nature. Some parasites are facultative. Facultative means faculty, changing their nature, facultative, facultative, facultative means parasites are of two types, obligate and facultative. Obligate are complete parasites. So the mycelium is aseptate. Aseptate means the mycelium is not divided into, like this is your mycelium and this is septate. If it is septate, then this will be like this, septa will be formed and the mycelium body will be single nucleus, means but its mycelium is aseptate, means there is no presence of septa in the body and the body will be multinucleated or cynocytic without septa. Okay. Asexual spores takes place by zoospores. जहाँ भी जू लगेगा, that means the spores are motile spores और aplanospores. जू स्पोर्स का आपका स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा, जैसे ये स्पोर्स हुआ और इसमें मोटिलिटी रहेगी, फ्लैजला रहेगा, और ए प्लानोस्पोर्स सिंपल राउंड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, देन दिस इज ए प्लानोस्पोर्स. These are aplanospores, no flagella, so there will be no movement. Now sexual mode of reproductions are not very much developed in this group. Some examples are mucor, राइजोपस, जो कि आप ब्रेड मॉल्ट पे देखते हैं, ब्रेड पे देखते हैं ब्लैक कवरिंग हो जाती है, नींबू पर देखते होंगे. राइजोपस, म्यूकर एंड अल्ब्यूगो, दैट इज द parasitic फंगस ऑन द मस्टर्ड. मस्टर्ड में वाइट कलर की कवरिंग हो जाती है, दैट अल्ब्यूगो. ये सभी फंगस का नाम एटलीस्ट जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये आपको याद करना है.
So simply the mycelium, the fungus Phycomycetes is the ancient group of fungus which has very less distinct characteristics. Aquatic भी होते हैं और aseptate mycelium है, so सिनोसिटिक बॉडी रहेगा. asexual स्पोर्स रहते हैं इसमें, लाइक जू स्पोर्स. मोटाइल होंगे तो और नॉन मोटाइल होंगे तो ए प्लानोस्पोर्स. एंड देन गिव द एग्जांपल्स ऑफ Phycomycetes. But just read about only these points at this stage, class 11. Okay, now next class of the fungus is your Ascomycetes. Here this asco means sac. Ascus means sac. Sac like structure means this type of fruiting bodies will be found in this fungus, and it is more developed than Phycomycetes. Listen, the whole fungus can be divided into two groups. The first basis of division is presence of mycelium and absence of mycelium, or aseptate or septate. Phycomycetes has mycelium, but these are aseptate. Now come to the presence of mycelium, and that will be septate. Ascomycetes are the group of fungus that has septate mycelium. Okay, the Ascomycetes are mostly multicellular. The mycelium, rarely unicellular Ascomycetes are found, and this unicellular Ascomycetes is yeast, जो कि काफ़ी हर जगह इसका हर एग्जाम्पल में आप यूनिसेलुलर फंगस में आप ईस्ट को पढ़ते हैं. ईस्ट दैट इज Saccharomycetes. दे आर saprophytic, decomposers, parasitic and coprophilous, means growing on dung. Mycelium is branched and septate. Here the body organization is little bit developed than Phycomycetes. Phycomycetes में mycelium branched वगैरह नहीं थे और septate नहीं थे, aseptate थे. लेकिन यहाँ septation स्टार्ट हुआ, मीन्स थोड़ा बहुत सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ. Asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiospores. ये देखिए, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि ये एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ. ये बहुत सारे माइसीलियम ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर हाइफा का बना हुआ है और ये फंगस बॉडी है. ओके, इसमें से, और ये सेप्टेट है, बॉडी सारे सेप्टेट है. इसमें किसी एक माइसीलियम पर वो कॉनिडियोफोर्स की तरह बिहेव करेगा, मानिए ये, और इस पे बहुत सारे एक्सोजिनस कोनिडिया ऐसे ऐसे आ जाएंगे. एक्सोजिनसली मीन्स आउटसाइड द बॉडी, आपको आँखों से दिखेगा, बॉडी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर दिखेगा. दैट इज़ कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड एक्सोजिनसली एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज कोनिडिया. एंड जिस माइसीलियम पे ये बना, दैट माइसीलियम विल बी कॉल्ड एज कोनिडियोस्पोर्स. नाउ sexual spores are called ascospores, which are produced इंडोजेनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस. जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको एक्सोस्पोर्स कहते हैं, एस्कोस्पोर्स. और ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में बने होते हैं. सैक लाइक स्ट्रक्चर, हाउ यू कैन आई कैन डिस्क्राइब यू. सी, लाइक this will be sac like structure will be formed, and inside it these ascospores will be found. So it is endogenous in structure because outer covering has sac like structure, that is ascus, and these spores are known as exospores. The ascospores, not exospores, ascospores. That ascospores is found inside this sac like structure, that is called ascus. इसको क्या कहेंगे? ascus. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स. ये स्पोर्स जो हो गए वो एस्कोस्पोर्स हो गए. इंडोजेनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एस्कस. दीज एस्की आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प. अब ये जो एस्कस है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड होगा और इसको हम लोग कहेंगे एस्कोकार्प. कार्प कहीं भी आए मीन्स फ्रूटिंग बॉडी, और इसके अंदर क्या रहेंगे? एस्कोस्पोर्स. सारे एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होंगे और ये एक फ्रूटिंग लाइक बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड हो गया और इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के कहेंगे एस्कोकार्प. ओके, सम एग्जाम्पल्स आर
एस्परजिलस, आप एग्जाम्पल्स को तो ध्यान में पढ़े ही। सम एग्जाम्पल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है, आप एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा का आप हर जगह जेनेटिक्स में और बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में, बायोकेमिकल नेचर जानने में, इंजाइमेटिक फंक्शंस जानने में और बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने में हम लोग न्यूरोस्पोरा को बहुत एक्सप्लॉइट किए हैं, मीन्स उसको बहुत एक्सप्लोर किए हैं, उसके बारे में पढ़े हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस न्यूरोस्पोरा पर होता है। ये जो आपके इसमें आपको पेनिसिलियम जो दिया हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है एस्कोमाइसीड्स का, जिस पे बहुत वर्क किया गया है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम का वर्क हुआ है पेनिसिलियम पर, और इनसे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है पेनिसिलिन। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये कोनिडिया है, और ये एक्सोजेनसली देखिए आपको कैसे स्पोर्स दिख रहे हैं। और ये जो ब्रांच हो गया जिस पे ये कोनिडिया बना हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज कोनिडियम, कोनिडियोफोर। नाउ द conidiophore, the branch will be called as conidiophores. So claviceps, neurospora and members like morels and buffels are edible and are considered as delicacies, means बहुत ही टेस्टी होते हैं। मोरल्स जैसे मशरूम भी फंगस के ग्रुप हैं, वो नेक्स्ट ग्रुप में आएंगे आपके, उसी तरह मोरल्स एंड आपके बफल्स होते हैं जो कि एडिबल हैं, मशरूम की तरह। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एडिबल फंगस हैं जो कि काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्कोमाइसीड्स। आप हर पॉइंट का ना एक दो नेचर याद रखिए, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्कोमाइसीड से फर्स्ट पॉइंट आपका आना चाहिए, दीज फ्रूटिंग बॉडीज हैव एस्कस sac like fruiting bodies. Conidia is formed exogenously. Ascus is the sexual spores that is found inside ascus, and the several ascus group together and form a fruiting structure called ascocarp. These all, and remember 1 and 2 members of each class. This is more than enough. Okay, not go in a very depth within of the every classes. The depth of the every class we have to read in higher classes. Just be acquainted about the class. हर फंगस की कितने क्लास हैं और हल्का फुल्का एक दो पॉइंट हर क्लास का आपको क्लास 11th में इतना ही याद रखना है। और हर चीज़ को याद रखने के लिए आप यहाँ देखिए, एस्कोमाइसीड से आपको याद होना है, माइसीड्स मीन्स फंगस होता है, और एस्कस से बना है, डैट इज सैक लाइक। ये जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लिक करना चाहिए। और एक सेक्सुअल स्पोर्स का नाम लिख दीजिए, एक एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम लिख दीजिए। माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है, वेल डेवलप्ड है, ब्रांच्ड है। ये सभी पॉइंट्स को पॉइंट में इंक्लूड करके, और एक डायग्राम, हर क्लासिफिकेशन में एक डायग्राम बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंगस, दैट इज Basidiomycetes. Here these are commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms. Mushrooms जो होते हैं इनके common members हैं। और here the Basidiomycetes are also called as club fungi. इनका जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्लब की तरह होता है, गद्दे की तरह होता है। लाइक इनका फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। ओके, so these are also are called as club fungi. Bracket fungi, puffballs are the members of this group. They grow in soil, logs, through some tree stumps and in living plant bodies as parasites like rust and smut. Rust and smuts are found in plant. Rust is very known disease of the Gramineae family, पोएसी फैमिली, जिससे आपको गेहूं, चावल ये सब बिलोंग करते हैं। गेहूं में स्पेशली आप रस्ट को देखिएगा, ब्राउन स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर उनके लीफ पर बन जाता है, एंड दैट इज काउज्ड बाय द पक्सीनिया, द एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स का भी नाम उनके कैरेक्टर पे पड़ा, दैट हैज़ फ्रूटिंग बॉडी, और द सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स, एंड बेसिडियम मीन्स क्लब शेप्ड। The mycelium is branched and septate. Asexual spores are generally not found. वहाँ पे आप देखिएगा, इससे पहले वाले जो एस्कोमाइसीड्स में आप पढ़े थे उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स था और उसका नाम क्या था? यस, कोनिडिया। लेकिन बेसिडियोमाइसीड्स में कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट हैं।
जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस में रिप्रोडक्शन का स्टेप जो पढ़े थे, जिसमें आप पढ़े थे कि पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फिर आपको सेल फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस फ्यूजन होगा, फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मियोसिस होगी। वो पूरी घटना इस बेसिडियोमाइसीट्स में होती है। हेयर the sex organs are absent, but their plasmogamy is brought about the fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype. ऑफ कोर्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो दोनों फ्रूटिंग बॉडी, दोनों फंगस में कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफरेंस होगा, तो स्ट्रेन डिफरेंस उसको कहते हैं। इस स्ट्रेन डिफरेंस में, और इस फंगस को कोई अपना स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं होता जिससे दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The different strains meet together and the plasmogamy happens. Plasmogamy कैसे होगा आप देखिए, जैसे प्लाज्मोगैमी करने के लिए see here the diagram, जैसे एक ये माइसीलियम का एक सेल आया और ये दूसरे स्ट्रेन के माइसीलियम से मिला। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ सेल। इसको मान देते हैं कि ये प्लस स्ट्रेन है और ये माइनस स्ट्रेन है। दोनों क्लोज आएंगे और इस दोनों में प्लाज्मोगैमी होगी, मीन्स दोनों मिलकर और दोनों का सेल मिलेगा और प्लाज्मा यहाँ एक दूसरे में मिल जाएंगे, दैट विल बी प्लाज्मोगैमी। और दो न्यूक्लियस रहेगा एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन। दो इसमें है न्यूक्लियस, सो दिस स्टेज विल बी नोन एज डाइकैरियोन। अब क्या होगा, देन डाइकैरियोन, द resultant structure is dikaryon and ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium for producing 4 basidiospores. इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बेसिडियम। ये जो आपका एक माइसीलियम में ये जो स्ट्रक्चर बन गया, दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए और प्लाज्मोगैमी हो गया, दिस इज कॉल्ड एज बेसिडियम। अब क्या होगा, इस बेसिडियम में पहले दोनों, अब जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे और एक न्यूक्लियस एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी नाउ 2n। अब ये 2n हो जाएगा, इसमें मियोसिस होगी और 4 बेसिडियोस्पोर्स आपके बनेंगे। मियोसिस का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर 4 डॉटर सेल्स होता है, तो हर में n आपका न्यूक्लियस आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर के साथ, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, एक एक न्यूक्लियस के साथ 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेगा इस बेसिडियम में। गिव राइज टू बेसिडियम, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम फॉर्मिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। These बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। ये जो आपके जो स्पोर्स बनेंगे इस बेसिडियम, जो ये आपका माइसीलियम था, मानिए ये बड़ा सा माइसीलियम था और ये बेसिडियम बन गया, ये मियोसिस होने के बाद एक्सोस्पोर्स होते हैं, मीन्स बाहर के तरफ ये 4 स्पोर्स आपके दिखेंगे, से बेसिडियम के इनसाइड लाई नहीं करेंगे, आउटसाइड लाई करेंगे। The बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। एक्सोजेनसली मीन्स बाहर, बेसिडियम के बाहर, लेकिन डिवीजन किस में हुआ, बेसिडियम में हुआ, और स्पोर्स कैसे निकले, बेसिडियम के बाहर निकले। द बेसिडियम आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी, और इस टाइप के बेसिडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड हो जाएंगे, बहुत सारे बेसिडियम मिल जाएंगे, तब वो बन जाएगा बेसिडियोकार्प। सम कॉमन मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स इज एगरिकस, फंगस जो है, मशरूम इसको कहते हैं, उस्तिलागो जो कि स्मट होता है, ये डिजीज काउज करता है प्लांट्स में। पक्सीन या रस्ट फंगस है, ये ग्रामिनी फैमिली में रस्ट डिजीज काउज करता है। ब्राउनिश स्पॉट होता है आपके लीफ पर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिडियम, बेसिडियोमाइसीट्स, जिसमें आपका फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बेसिडियम है, और बेसिडियोस्पोर्स बनता है, एक्सोजेनसली बनता है। आप याद में रखिएगा, एस्कोमाइसीट्स में जो एस्कोस्पोर्स बने थे वो इंडोजेनसली बने थे एक्सकस में, ओके, और बहुत सारे एस्कस मिलके एस्कोकार्प बन रहे थे। लेकिन बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियम जो है और अच्छा खासा इसमें सेक्सुअल स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं जो कि आपके एस्कोमाइसीट्स में नहीं हुए थे।
मीन्स कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी हुआ है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना है, फिर मेयोसिस हुई, फिर डिप्लॉयड सेल बना है, फिर मेयोसिस हुई है, फिर 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बने हैं। चारों हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं बेसिडियम के आउटसाइड लाई किए हैं एक्सोजिनसली, फिर वो एक अरेंज्ड हो गए हैं एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दे ऑल अरेंज्ड इन अ मैनर एंड फॉर्म बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एगरिकस, मशरूम, उस्तिलागो एंड पक्सीनिया। नाउ कम टू द लास्ट ग्रुप ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीट्स। ये ड्यूटेरोमाइसीट जो है फंगस का वो काफ़ी कंफ्यूजिंग ग्रुप है। इसमें ये इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है, क्योंकि जब जो फंगस को डिस्क्राइब करने में हम लोग कैपेबल नहीं रहते हैं कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए, किस अपर वाले ग्रुप में रखा जाए, फाइकोमाइसीट्स में रखा जाए कि एस्कोमाइसीट्स में रखा जाए कि बेसिडियोमाइसीट्स में रखा जाए, जब तक उनका कैरेक्टर ठीक से कैरेक्टराइज नहीं होता, क्लासिफाइड नहीं होता, वो फंगस जो हैं वो ड्यूटेरोमाइसीट्स में रखे जाते हैं। सो दीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, और जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज होती है, पता चलता है, तो उनको एबव किसी ग्रुप में या तो एस्कोमाइसीट्स में या बेसिडियोमाइसीट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। सो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज ऑफ दिस फंगस आर नोन। When sexual forms of these fungus were discovered, then they are moved into the classes they rightly belong to. मीन्स ये लेस डिस्कवर्ड फंगी है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता, उनके सेक्सुअल नेचर के बारे में पता नहीं रहता, क्योंकि मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स ही फंगस के क्लास का कैरेक्टराइजेशन का मेन बेसिस है। और जिस फंगस का सेक्सुअल मोड ही नहीं पता रहेगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो बेसिडियोमाइसीट्स में है कि एस्कोमाइसीट्स में है। और वो अगर आपका नेचर सो फाइकोमाइसीट्स से भी उसका माइसीलियम जो है वो मिल नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट ग्रुप होगा। मानो कि फाइकोमाइसीट्स का माइसीलियम कैसा है, ए सेप्टेट है, और इसमें माइसीलियम सेप्टेट हो जाए और उसमें सेक्सुअल स्पोर्स की कोई खोज ना हो, तो सबसे पहले तो सेप्टेट और ए सेप्टेट माइसीलियम में हम बातें थे, जिसमें ए सेप्टेट में आपका फाइकोमाइसीट्स आया था और सेप्टेट में आपका बेसिडियो और एस्को आया था, और उसमें दोनों सेक्सुअल स्पोर्स में डिफरेंट था। इसमें भी जो माइसीलियम होता है वो डेवलप्ड होता है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पता नहीं रहता। तो जब तक पता नहीं रहता वो ड्यूटेरोमाइसीट्स में रहते हैं उनके वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, और जब पता चल जाता है तो उनको शिफ्ट कर देते हैं इन द परफेक्ट क्लासिफिकेशन। The sexual stage is another given. It is possible that asexual and vegetative stage has been given one name, और ये possibility है इस ग्रुप में कि ड्यूटेरोमाइसीट्स में अगर वो फंगस है तो उसका कोई दूसरा नाम है, और जब उसके सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में जानकारी हो गई और उसको दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया तो फिर उसका दूसरा नाम हो जाएगा। The sexual stage is another. Later, when linkage were established, the fungi are correctly identified and moved out of deuteromycetes. Once perfect means sexual stage. Perfect stage means sexual stage of the members of deuteromycetes were discovered, then they are often moved to ascomycetes or basidiomycetes. The deuteromycetes reproduce by only sexual spores known as conidia. Conidia के माध्यम से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ऑफ कोर्स इसीलिए इनको फाइकोमाइसीट्स में नहीं रखा जाता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, हेल्प इन मिनरल साइकिल। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया, ये ट्राइकोडर्मा यूज होता है फंगस में प्रोडक्शन में, बायोकेमिकल प्रोडक्शन में। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये 3 आपके इसके एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं लाइव क्लास में बता दूंगी जो ड्यूटेरोमाइसीट्स में नाम ये है और उनको एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में शिफ्ट किया गया है। So this is all about the 4 classes of the fungus, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Phycomycetes are the most ancient one, and then gradual development starts in Ascomycetes,
बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स को कह सकते हैं दीज आर द कन्फ्यूजिंग ग्रुप ऑफ फंगस, जिसके कैरेक्टर की अभी उतनी डिस्कवरी नहीं हुई रहती है और वो फाइकोमाइसीड्स भी नहीं रहते हैं, तो वो ड्यूटेरोमाइसीड्स रहते हैं। इम्परफेक्ट फंगी ग्रुप इनको कहा जाता है। और जब सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पता चल जाता है तो इनको कंसेक्यूटिव क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेक द नोट्स इन पॉइंट वाइज में नोट्स बनाइए, और जितने पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। हर क्लास में एक एक डायग्राम जरूर बना लीजिए, किसी टेक्स्ट बुक से सर्च करके कोनिडिया वगैरह का डायग्राम बना लीजिए और पॉइंट वाइज में नोट्स को बनाइए। ओके, रीड द बुक अगेन एंड अगेन, and in the next class we will talk about the next topic. Okay, thank you.